So dear student, today I am going to explain about the radial and transverse component of velocity. In the previous lecture, we already discussed about that the Newton's law of motions. So today, what is the radial and transverse component of velocity? Before that, we know that the linear motion. What is the linear motion? For example, if any object or any body which is moving in a straight line from one position to another position, this motion is called as what? Linear motion. That means what? A motion of a body in a straight line is called as linear motion. Okay. सो कोई भी बॉडी अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव करती है तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन. बट कभी कभी क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो एक कर्व पाथ में मोशन करती है. सपोज फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे कि अगर ये सन है, ओके, तो सन के अराउंड जो अर्थ होगी वो क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी. बट रिवॉल्विंग करते समय इसका पाथ जो होगा वो कैसे होगा? कर्व पाथ होगा या फिर सर्कुलर पाथ होगा. दैट मीन्स व्हाट? वेन एवर द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन in a curve path or in a circular path, then what type of velocity is generated here? So इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब कोई अर्थ यानी कि अर्थ कर्व पाथ में मूव करती है तो इसको दो कंपोनेंट मिल सकते हैं वेलोसिटी के. तो एक रहेगा कर्व पाथ के अलोंग. सपोज मान लो कि अर्थ यहाँ से अलोंग ये पाथ पे ट्रैवल कर रही है तो इसका इसी कर्व पाथ को एक टेंजेंट सरफेस रहेगा जो हम कंसिडर करेंगे अलोंग EB. ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्विंग करना स्टार्ट करती है तो इसको दो कंपोनेंट, इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट में हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. सो देन हाउएवर व्हेन एनी बॉडी इज मूव in a curve path or along the curve path, then what type of velocity is here? So there is a two component of velocities, one is radial and another one is transverse component. Okay, so इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कार्टेशियन सिस्टम कंसिडर करना पड़ेगा. सो हम एक यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम कंसिडर करेंगे. सो नाउ सपोज this is a Cartesian system, x and y. Okay, at initial the particle is at point P and this position is indicated by the vector r. Vector r be the position vector and r cap with its unit vector. In instant time of period when the particle will be moved from its original position to new position in a curve path. ये कौन से पाथ में मूव कर रहा है? कर्व पाथ. then its new position is here, that is represented by P dash. so this due to the small instant of time, in the small instant of time that angle will be changed. Okay, therefore its position will be changed and during the small instant of time that position of that particle will be changed along the curve path. Therefore there is a displacement, that is displacement means that position of a particle represented. So vector r is equal to r into r cap. Okay, तो हमने क्या देखा है यहाँ पर कि पार्टिकल की पोजीशन जब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक चेंज होने लगी
तो उसमें एक डिस्प्लेसमेंट मिला। वो डिस्प्लेसमेंट कौन सा था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और नए डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा चेंज आ गया। तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या मिला? इसका डिस्प्लेसमेंट मिला r is equal vector r is equal to r into r cap. Okay, where r be the magnitude and where r cap be the unit vector. अगर इसी डिस्प्लेसमेंट से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी इट is equal to the derivative of that displacement, that is the rate of change of displacement. So velocity vector v is equal to हम find कर सकते हैं क्या? That is vector dr by dt. Okay, then therefore vector v is equal to dr by dt. r की वैल्यू क्या है? That is d by dt of r इंटू आर कैप। ओके, तो यहाँ पर लगेगा डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल दैट मीन्स डी बाई डी टी वेक्टर आर इंटू आर कैप, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आर कैप इंटू डी आर बाई डी टी प्लस r into dr cap by dt. Okay, so now from this equation that vector velocity is equal to vector v is equal to हमें मिला है r cap dr by dt प्लस r इंटू डी आर कैप बाय डी टी। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है, तब इसके साथ क्या चेंज हुआ है? इसका एंगल भी चेंज हुआ है। देखो यहाँ पर पहले सपोज अगर हम कंसिडर करेंगे एक दूसरे एग्जांपल में कि अगर ये ओरिजिन है O और ये पार्टिकल की पोजीशन है P, तो इस पार्टिकल की पोजीशन अगर ये सपोज ओरिजिन है X और ये है y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, और इसने नई पोजीशन यहाँ पर बना ली P डैश, तो इसके साथ पहले इसका एंगल रहेगा थीटा। अब यहाँ से इसका नया एंगल बन जाएगा डी थीटा। इसके साथ इसकी जो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट थी वो r, नई डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द स्मॉल टाइम ऑफ डी टी इंटरवल, इसकी नई डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी डेल्टा r। ओके, दैट मीन्स डेल्टा थीटा बाय डेल्टा आर। ओके, तो छोटे से इन इंटरवल अब छोटे से टाइम पीरियड के अंदर में इसके साथ चेंज क्या होगा, वो चेंज हम यहाँ पर करेंगे। सो वेक्टर v इज इक्वल टू आर इंटू डी आर बाई डी टी, ये बन प्लस आर, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें क्या करना है, आर क्या बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। ओके, सो डी आर बाई डी टी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर डॉट ये डेरिवेटिव भी शो करता है, प्लस आर डी आर कैप बाई डी थीटा, तो ये बन जाएगा थीटा कैप। क्या बन जाएगा ये? थीटा कैप। ओके, सो इनटू डी थीटा बाई डी टी यानी कि थीटा का डेरिवेटिव, तो इसको लिख सकते हैं हम थीटा डॉट। ओके, सिंस हम कंसिडर करेंगे डी आर कैप बाय डी थीटा, दैट इज द थीटा कैप, एंड डी थीटा बाय डी टी इज नथिंग बट द थीटा डॉट। ओके, सो वेक्टर v फाइनली हमें क्या मिलेगा, वेक्टर v इज इक्वल टू आर डॉट आर कैप प्लस आर इंटू थीटा डॉट इंटू थीटा कैप, and this r component, that means r dot r component, that is the radial component of velocity, plus this component is called as a transverse component of velocity, and hence v is equal to हमें मिलेगा वेक्टर v is equal to वेक्टर vr plus वेक्टर vt, that means total velocity is equal to radial component velocity plus transverse component velocity. Okay, when the particle is in a
curve motion or is in a circular motion, then the velocity is divided into two components, that is radial component and transverse component.